Guess what? In the recent CRE exam, we achieved a 90% strike rate. Yes, you heard that right. The questions seem to come directly from our community health nursing MLB Pro Earth Batch class on day 4, January 19th, and also from our pharma class on day 4, October 24th. And now you all can see how the topics and questions were directly pulled from our classes. And if you are preparing for your NORCET exam or any nursing competitive exam, make sure you are not missing out any of these classes. They are your golden ticket to your success. Thank you. Dolutegravir, TLD. एडल्ट्स में टेनोफोवीर, लैमिवुडीन एंड डोलूटेग्रावीर। ये कितनी दफा खानी होती है? 1 टैबलेट वंस डेली खानी होती है, यूजली एचएस। एचएस मतलब सोने से पहले, बेड टाइम। सो 1 टैबलेट डेली खानी है, यूजली एचएस, यूजली अराउंड सेम टाइम, usually around same time, 1 tablet HS all through the life. This is what is ART. ART क्या है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हाँ, ये FDC है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। एक ही टैबलेट जैसे मिलती है ना कॉम्बीफ्लेम वगैरह, एक ही टैबलेट होती है all through the lifelong. Or if the mother has viral load more than 1,000 copies of viral RNA, तो फिर हम उसको हाई रिस्क कहेंगे। ये सब ना हो, एनीथिंग विच इज नॉट देयर, उसको हम लो रिस्क कहेंगे। लो रिस्क में हम क्या करते हैं बेटा? लो रिस्क में बच्चे को देनी है नवीरापीन। हाई रिस्क में क्या देना है? नवीरापीन प्लस जिडोवुडीन। नवीरापीन प्लस जिडोवुडीन। ये नवीरापीन जिडोवुडीन ये कितनी देर के लिए देनी है? इट इज टू बी गिवन फॉर 6 वीक्स। 6 वीक्स के बाद क्या करना है? 6 वीक्स के बाद क्या करना है? उसको 6 हफ्ते तक नवीरापीन या नवीरापीन प्लस जिडोवुडीन पिलाया। हाउ डू वी प्रिवेंट HIV? कॉन्ट्रासेप्टिव। HIV प्रिवेंशन के लिए बेटा हमें PEP देनी पड़ेगी। व्हाट इज PEP? पोस्ट एक्सपोजर prophylaxis. Post exposure prophylaxis. This post exposure prophylaxis is given as same answer T, L and D. So same answer T, L and D. Tenofovir 300 milligram, lamivudine 300 milligram, dolutegravir 50 milligram. It is given as 1 tablet once daily and it is given for 28 days. It is to be given for 4 days. This is the post-exposure prophylaxis. 4 weeks के लिए 28 days. How do we prevent HIV? Contraceptive. HIV प्रिवेंशन के लिए बेटा हमें PEP देनी पड़ेगी। व्हाट इज PEP? पोस्ट एक्सपोजर prophylaxis. Post exposure prophylaxis. This post exposure prophylaxis is given as same answer T, L and D. So same answer T, L and D. Tenofovir 300 milligram, lamivudine 300 milligram, dolutegravir 50 milligram. It is given as 1 tablet once daily and it is given for 28 days. It is to be given for 4 days. This is the post-exposure prophylaxis. 4 weeks के लिए 28 days. Blood, which is the most effective route? Most effective route. Efficient is blood, but effective कौन होता है? Needle stick injuries. It is given to needle stick injuries. And this should be started within how much time?
72 hours or as early as possible, best within 2 hours, but not more than 72 hours. It should be started within 72 hours, best within to be given within 2 hours. Next is there is also another regime. So one is PEP. Second, there is also another regime that is called as pre-exposure. तो इसलिए correct वाला लिख लो. बच्चों में कौन सा टेस्ट होता है? It is HIV, TNA, RT-PCR. ठीक है? कैसे ठीक है? TNA क्या होता है? नई मुसीबत शुरू हुई है. HIV तो समझ में आया, RT-PCR भी समझ में आया. TNA कौन है? TNA क्या है? HIV, TNA, RT-PCR. RNA होता समझ में आता, DNA होता समझ में आता है, TNA कौन है? न्यूक्लिक एसिड है. तो T stands for excellent, good thought. At least you try to answer it. It is nothing but mixture of DNA, RNA. That is ज्यादा कुछ नहीं है. Total nucleic acid, which includes both DNA and RNA. बिल्कुल ठीक बात है. सेक्सुअल रूट इज द इफेक्टिव रूट. क्या आप जानते हो इंडिया में जितने भी HIV केसेस हैं, जितने भी HIV केसेस हैं हमारे पास, कोई 1.5 पौने 2 लाख HIV केसेस पूरे इंडिया में है. उनमें से क्या आप जानते हो 95% ऑफ ऑल HIV इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रूट. 95% ऑफ ऑल HIV इज ड्यू टू सेक्सुअल रूट. ऐसा भी तो आपने बनाया होगा ना डिजीज होने से पहले. हाँ, तो किन को मिलेगा? सेक्स वर्कर्स. एक्सेलेंट आंसर. It is given in habitual sex workers. Two types. कौन से two types? HIV 1 and HIV 2. Which is more common, 1 or 2? इंडिया में 1 कॉमन है. इसके ग्रुप्स कितने होते हैं? 3, 4. HIV ग्रुप MNOP. इसके ग्रुप्स होते हैं बेटा. HIV के ये टाइप्स हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ HIV? 1 and 2. इन 1 and 2 के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मतलब 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है 1. MNOP. ठीक है. और इनमें से मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा है? M. इनमें से मोस्ट कॉमन इज M. और M के आगे बेटा 13 सब ग्रुप्स होते हैं. सो ये ABCDEFGH 13 तक चलते हैं. इनमें से मोस्ट कॉमन कौन सा सब ग्रुप होता है? सब ग्रुप C. तो विच इज द मोस्ट कॉमन HIV इन इंडिया? HIV मोस्ट कॉमन बेटा, मोस्ट कॉमन ही होता है. मोस्ट कॉमन HIV हैज टू बी द मोस्ट कॉमन HIV. मोस्ट कॉमन कौन सा हुआ? मोस्ट कॉमन ए नहीं 1. इट इज कॉल्ड एज दिस चाइल्ड इज टेक्निकली, मतलब टेक्निकल भाषा में दिस चाइल्ड इज कॉल्ड एज चाइल्ड एक्सपोज्ड टू HIV. सो व्हाट इज अ चाइल्ड एक्सपोज्ड टू HIV? इसका मतलब क्या होता है? हिडन मीनिंग क्या है देसी भाषा में? कि उसकी मम्मी को HIV. और तो कोई तरीका ही नहीं है ना HIV आने का बेबी में, नियोनेट में. सो ये चाइल्ड मतलब बेबी की बात कर रहे हैं. जैसे ही बेबी पैदा हुआ तो उसको आप क्या बोलते हो? चाइल्ड एक्सपोज टू HIV. इसका हिडन मीन, ये एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, ये एक डिसेंट लैंग्वेज है उस बात को कहने की कि उसकी मम्मी को HIV था. अभी ओके विद दिस? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड एक्सपोज टू HIV? बेबी जैसे ही पैदा हुआ इसको क्या करना है बेटा? कॉर्ड क्लैम्प वो सब हो गया. अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना है एंड ऑल दैट. वो जिडोविडिन, नवीरापीन. सो जैसे ही बेबी पैदा हुआ बेटा, जैसे ही बेबी पैदा हुआ तो आपको ये देखना है कि बेबी जो है वो लो रिस्क है या हाई रिस्क है. ये आपने पीड्स में करा था? किसका?
हाँ, और क्या करना है, साइड इफेक्ट वगैरह भी उसका क्या करना है, लो रिस्क और क्या करना है, मतलब है ही इतना कि लो रिस्क किसको कहोगे। हाई रिस्क इज बिल्कुल ठीक है, इफ द मदर has never taken ART, never taken ART, or less than ART, less than 4 weeks, or if the mother has viral load more than 1,000 copies of viral RNA, तो फिर हम उसको हाई रिस्क कहेंगे। ये सब ना हो, एनीथिंग विच इज नॉट देयर, उसको हम लो रिस्क कहेंगे। लो रिस्क में हम क्या करते हैं बेटा, लो रिस्क में बच्चे को देनी है नेविरापिन।